Good morning, students. Today we will cover English channel chapter 5. Topic is Hector Hummingbird. You refer page 53 to 55. So, Hector Hummingbird, I have already given you the worksheet for this chapter. So, please go through the lesson. So, look at this first page. It is in chapter 5. The topic is Hector Hummingbird. Okay, you see, these are some picture. It is told to match the correct picture with the correct name. Okay, now let us start the story. Something big was happening in the forest. The forest means jungle. Something big was happening. Hector Hummingbird could feel the excitement. Hector Hummingbird is the name of a bird. So this is Hector Hummingbird. Okay. So Hector Hummingbird is thinking something big was happening in the forest. जंगल में कुछ एक बड़ा होने जा रहा है, ये चीज फील किया हेक्टर हमिंगबर्ड. He flitted over to where Oliver Owl was sleeping on a branch. See, this is Oliver Owl. Another bird, an owl. His name is Oliver. Okay, he is sleeping in this branch. Okay, so Hector Hummingbird flitted over. Flitted means move slowly to Oliver Owl, who was sleeping on a branch of this tree. Who is waking me up? Asked Oliver Owl grumpily. So, flitted means move slowly. Grumpily means angrily. Oliver Owl angrily said when he felt the presence of Hector Hummingbird. When he felt the presence of something, he angrily said, "Who is waking me up? मेरे को कौन उठा रहा है?" गुस्सा में बोले. Something is happening. I can feel it, said Hector. Hector बोला, something is happening. I can feel it. That means he questioned to Oliver. Yes, and you need me to tell you what it is? Oliver told, yeah. You need me to tell you what was happening? ये क्वेश्चन किया. Growled Oliver. Means Oliver बोला है कि yeah, you need me to tell you what is it? मेरे को पूछने के लिए तुम ये बोल रहे हो कि क्या हो रहा है? His huge eyes wide open now. ये बोलते हुए उसका जो गोल आंख पूरा खुल गया. He was the wisest owl in the whole forest. Entire जंगल में he was the wisest owl. सबसे बुद्धिमान उल्लू. And Hector knew that Oliver would know what was happening. हेक्टर को पता था कि ओलिवर को मालूम होगा क्या हो रहा है, इसलिए वो आया है, धीरे धीरे आके उसको पूछा. इट इज सिंपल यार्ड ओलिवर. वो ऐसे यान करके बोला है. ये बोला है कि इट इज सिंपल, ये वेरी सिंपल. यान WAWNED यान, ऐसे ही बोला. ये बहुत सिंपल है. वो आलस मार के बोला है. द किंग इज कमिंग टू द फॉरेस्ट फॉर ए पिकनिक. फॉरेस्ट को या जंगल के और राजा अपना फैमिली लेके आ रहा है पिकनिक करने के लिए. नाउ बजअप एंड लेट मी सी. बजअप मीन्स क्विकली गो. Now budge up, vacate quickly, go away quickly, go away at once.
अभी तुरंत चले जाओ, हाँ मेरे को सोने दो। बिकॉज क्या है, उल्लू जो होता है वो रात भर जागते रहते हैं, शिकार करते हैं, खाते हैं, दिन में पूरा सोते हैं, रेस्ट लेते हैं। सो टू टेक रेस्ट, द owl after answering his query or after solving his excitement, he told to go away immediately. He closed his big brown eyes. Then he closed his big brown eyes. He spent the rest of the morning sipping. He means here the Hector hummingbird. He spent the rest of the morning. सुबह का दूसरा टाइम तक वो पूरा स्पेंड किया बाई व्हाट, बाई सिपिंग नेक्टर फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लावर्स। फॉरेस्ट में बहुत सारा फूल होते हैं, जंगली फूल। तो जंगली फूल से वो क्या करता है, नेक्टर लेता है। जो नेक्टर होता है, फूल का जो रस होता है, नेक्टर होता है, उसको वो ग्रहण करता है या पीता है। तो वो चिड़िया, वो जो हेक्टर हमिंगबर्ड क्या किया, एंटायर रेस्ट ऑफ द मॉर्निंग स्पेंड किया ये सिप करने के लिए, नेक्टर सिप करने के लिए, ओके, जंगली फ्लावर्स। एंड देन ही हर्ड द साउंड ऑफ वॉइसेस व्हाइल सिपिंग नेक्टर फ्रॉम द जंगल फॉरेस्ट, फ्रॉम द फॉरेस्ट फ्लावर्स। ही कुड एबल टू सी लिसन द वॉइसेस, सम वॉइसेस, ओके। He floated through the trees until he came across the picnic. He floated through the trees means he moved from one place of the tree, one branch to another branch of the tree, and he could ultimately found the king, the queen, and even the princess. ये तीनों को देखा पिकनिक करते हुए, इधर उधर डाली डाली पर वो करके फाइनली राजा और उनका परिवार को पिकनिक करते हुए देखे। अभी देखो ये यहाँ देखा, यहाँ बैठा है और यहाँ पिकनिक हो रहा है, ये पिकनिक हो रहा है। हेक्टर वाज फ्रॉम ए ट्री एज द पिकनिक कंटिन्यूड। ये पिकनिक जब कंटिन्यू होता है उस दौरान वो हेक्टर गंज का टहनी में बैठ के पूरा देखा। The picnic, he was from a tree as the picnic continued with footmen serving a huge array of treats and tidbits. इसका मतलब क्या है, वो पेड़ का टहनी का ऊपर बैठ के पिकनिक कंटिन्यू होते हुए देखा। पिकनिक कैसे कंटिन्यू हुआ, with footmen serving a huge array of treats and tidbits. Footmen means राजा का जो आदमी है, उनका जो नौकर चाकर, जो उनका पियादा या ऑर्डरली जो राजा के लिए काम करते हैं, वो फुटमैन्स सर्व करते थे क्या, ह्यूज अरे ऑफ ट्रीट्स एंड टिडबिट्स। ह्यूज अरे, यू सी अरे मीन्स एन अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, फुटमैन मीन्स सर्वेंट, देखो लिखा है, अरे मीन्स एन अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, और टिडबिट्स मीन्स स्मॉल टेस्टी बीट्स ऑफ फूड, स्मॉल टेस्टी बीट्स ऑफ फूड। तो उसका जो पदातिक, जो नौकर चाकर, वो पूरा अरेंज करके खाना सब अरेंज करके सब सर्व करते हैं टेस्टी फूड सब, ओके। ट्रीट बीट्स, ट्रीट्स जो ट्रीट देना है वो उसको ट्रीट बोलते हैं। क्या ट्रीट देते हैं, टीट बिट्स मैंने स्वादिष्ट खाना, स्वादिष्ट व्यंजन, स्वादिष्ट सब फूड स्टफ वो सर्व करते हैं। बहुत सारा स्वादिष्ट फूड स्टफ को वो ट्रीट का हिसाब से सर्व करते हैं। टिडबिट्स मीन्स जो टेस्टी फूड, टेस्ट स्मॉल टेस्टी बिट्स ऑफ फूड, स्मॉल छोटा छोटा टेस्टी फूड सब उसको वो ट्रीट का हिसाब से सर्व करके अरेंज करके रखते हैं, और राजा रानी और राजकुमारी खाते थे। तो ये है, ऐसे पिकनिक होता था, ओके। अदर सर्वेंट्स फ्रीटेड अबाउट मेकिंग श्योर एवरीथिंग वाज परफेक्ट फॉर दी रॉयल फैमिली। और दूसरा जो नौकर चाकर है, खाली तो एक चाकर नहीं होता है, राजा का तो बहुत सा सर्वेंट्स होते हैं। तो जब कुछ
सर्वेंट्स जो जो स्वादिष्ट टिडबिट्स या स्वादिष्ट छोटा छोटा खाना उत्तम खाना सर्व करते हुए उधर व्यस्त रहते थे, उसको देखभाल करने के लिए भी दूसरा नौकर भी मौजूद थे। वो भी देख रहे थे कहीं कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि ये रॉयल फैमिली है, राजा का फैमिली है, छोटी बात नहीं है। तो राजा रानी राजकुमारी पूरा रॉयल फैमिली है, पिकनिक कर रहे हैं, तो अच्छा अच्छा खाना सर्व होना चाहिए, स्वादिष्ट व्यंजन सर्व होना चाहिए, छोटा छोटा अमाउंट में खाना, टेस्टी फूड्स का डिशेस वहाँ पर भरपूर होना चाहिए, वो सब एंजॉय करना चाहिए, कुछ गलती नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ भी देखने के लिए भी नौकर मौजूद है। हेक्टर chuckled मीन्स laughed softly। क्यों? The servants were just like hummingbirds। The servants were just like hummingbirds, darting here, there and everywhere। Darting means running or moving very quickly। वो अपने आप हंस पड़ा, धीरे से हंसा। क्यों? बिकॉज वो जैसे हेक्टर हमिंगबर्ड जैसे इधर से उधर डाली या टहनी मूव करता रहता है, नेक्टर सीव करता रहता है फॉरेस्ट फ्लावर से, वैसे ये जो नौकर चाकर राजा का वो सारे व्यस्त रहते हैं एरे ऑफ ट्रीट्स को और ट्रीट्स को सर्व करते हुए, जो पूरा टेस्टी फूड से छोटा अमाउंट का टेस्टी फूड से वो सब ट्रीट्स का हिसाब से सर्व करते थे और देखते थे कहीं कुछ गलती या प्रॉब्लम नहीं हो, तो ऐसे करके भाग दौड़ करते थे। तो इसको देखे वो हंस पड़ा, धीरे से हंस पड़ा और बोला ये लोग भी, ये नौकर भी मेरा माफी है। The servants were just like hummingbirds darting here and there and everywhere। ये चीज लिखा गया कि ये जो सर्वेंट्स है ये भी हमिंगबर्ड्स का तरह इधर उधर भाग दौड़ करते रहते हैं। Everybody was having a wonderful time until the queen looked up into the trees and screamed। Everybody was having a wonderful time। सब कोई खुश थे, सब कोई अच्छे से एंजॉय करते थे, तब तक जब तक क्वीन लुक्ड अप इनटू द ट्रीज एंड स्क्रीम्ड। जब तक वो रानी पेड़ का ऊपर देख के नहीं चिल्लाई, तब तक ये सब खुश रहते थे, खुश होते थे, एंजॉय करते थे। तो क्यों स्क्रीम किए? स्क्रीम मतलब वो चिल्लाई और जोर से बोली, क्या? माई बेबी, शी क्राइड, माई लिटिल गर्ल। वो शी कुड फाइंड हर बेबी क्लाइम्ड अप द ट्री, सो शी क्राइड एंड सेड माई बेबी, माई लिटिल गर्ल। तो ऐसे पुकार के स्क्रीम किए, चित्कार किए। एवरीबॉडी लुक्ड अप, सब कोई खाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, सब कोई व्यस्त थे, मगन थे। लेकिन हठात रानी ने पेड़ का ऊपर जब देखा उनका जो प्रिंसेस वो क्या की, वो पेड़ का ऊपर क्लाइम करके कहीं टहनी में बैठ गई। तो उसको देख के उनका डर हुआ और वो चिल्लाए, स्क्रीम कि माय बेबी, शी क्राइड, माय लिटिल गर्ल। एवरीबॉडी लुक्ड अप व्हाइल दे हैड बीन सो हरी picnicking। The princess had climbed high up into a big tree and was now on a branch far above the ground। जमीन का बहुत ऊपर एक पुराना ओक ट्री का टहनी पर ऊपर में क्लाइम करके बैठी प्रिंसेस। जब कोई पूरा फैमिली, रॉयल फैमिली जब और नौकर चाकर जब व्यस्त थे खाना सर्व करके, ये लोग जब खाना खाते थे, उस बीच में राजकुमारी ने क्या किया, वो चढ़ गई पेड़ का ऊपर। हाँ, तो रानी ने जब देखे वो स्क्रीम चिल्लाई, और बोली वो माय गर्ल, लिटिल गर्ल, माय बेबी। देन सडनली सब कोई ऊपर देखा, एवरीबॉडी लुक्ड अप व्हाइल दे हैड बीन सो बिजी पिकनिक। पिकनिक का दौरान सब कोई जब बिजी थे,
राजा रानी खाने में व्यस्त थे, नौकर चाकर खाना देने के लिए भी व्यस्त थे। ये सब व्यस्तता का अंदर प्रिंसेस क्या की, क्लाइंब्ड अप इनटू ए बिग ओल्ड ओक ट्री एंड वाज नाउ ऑन ए ब्रांच far above the ground. Right? Say, my daughter, commanded the king. But just as his men ran towards the tree, the princess slipped. Okay. तो किंग ऑर्डर दिया, सेव माई डॉटर, मेरा जो डॉटर को बचाओ, सेव माई डॉटर, ये कमांड किए। बट जस्ट आज हिज मेन मीन्स आज हिज फुटमैन, जब उनका जो आदमी, जो फुटमैन या उनका जो सर्वेंट जब दौड़े बचाने के लिए, उस टाइम में पेड़ का ओर जब दौड़े, द प्रिंसेस स्लिप, प्रिंसेस जो टर्न पे थे वो स्लीप हो गए, स्लिप्ड, प्रिंसेस क्या की, स्लिप की। ग्रैबिंग द ब्रांच विथ हर हैंड्स, वो स्लिप करके उनका ब्रांच, जो ट्री का ब्रांच को अपना हाथ में पकड़ के जकड़ के रखे। ठीक है, ग्रैबिंग द ब्रांच विथ हर हैंड्स शी डैंगल्ड हेल्पलेसली अप इन द एयर, हवा में पूरा झूला, वो ट्री का टहनी का ऊपर क्लाइंब करके जाके बैठी थी। जब सब कोई चिल्लाए, राजा ने ऑर्डर दिए, सब भाग दौड़ किए बचाने के लिए, उस टाइम में वो स्लिप करके टहनी को पकड़ करके झूला हवा में। सो ग्रैबिंग द ब्रांच विथ हर हैंड्स द शी डैंगल्ड हेल्पलेसली, डैंगल्ड मीन्स हैंग और स्वंग फ्रीली, हैंग करके झूला, झूलने का मापी हैंग करके पूरा एयर में अटक गया, डैंगल्ड। ओके, हेल्पलेसली, असहाय भावे इन द एयर, शी कुड नॉट होल्ड ऑन ए वेरी लॉन्ग एंड वुड श्योरली फॉल, छोटा बच्ची है, ज्यादा देर तक तो नहीं पकड़ पाएगी, तो गिर जाएगी, ये तो पक्का है। सडनली द क्राउड गैस्प्ड, जो गैस्प मतलब took a deep breath in surprise. The crowd means suddenly, the crowd means राजा रानी नौकर चाकर सब कोई, जो क्राउड है वो सडनली क्या किए, गास्प मीन्स became silent and took a deep breath, means what to do, they were totally blank, मुंडी काम नहीं किया, वो पूरा क्या करेंगे, अभी तो गिर जाएगी, बच्चा गिर जाएगी, तो इसलिए वो क्या किए, गैस बने, दे टुक ए डीप ब्रेथ इन सरप्राइज। ओके, दे गैस्ड, देयर वे अप इन द ट्री वाज ए हमिंग बर्ड पुलिंग द प्रिंसेस by the dress back into the branch. Let us see what is written. Pulling the princess by the dress back onto the branch. वो प्रिंसेस का ये जो हमिंग बर्ड क्या किया, उसका देखो जो सडन प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमिंग बर्ड ये सब देख के, बिकॉज ही वाज वाचिंग फ्रॉम द branch of the tree and he could understand everything, so suddenly the hummingbird pulled the princess by the dress back onto the branch, वो ड्रेस को ले करके हमिंगबर्ड उसका ब्रांच का ऊपर बैठाने के लिए वो प्रयत्न किया। हमिंगबर्ड ने वो जो हवा में लटक के झूला था ना, इसीलिए वो उसका जो ड्रेस को पकड़ करके उसको खींच के ब्रांच का ऊपर बैठाने के लिए प्रयत्न किया या कोशिश किया। तो सडनली देयर वे अप इन द ट्री वाज ए हमिंगबर्ड, हमिंगबर्ड तो था ही, पुलिंग द प्रिंसेस बाय द ड्रेस, अपना जो प्रिंसेस का जो ड्रेस को पुल करके बैक ऑन टू द ब्रांच के लिए कोशिश किया, वो ब्रांच का ऊपर उनको बैठाने के लिए, जहाँ वो बैठी थी वो ब्रांच में अगेन बैठाने के लिए वो प्रयत्न की या कोशिश की। हेक्टर पुल्ड एंड पुल्ड, हेक्टर को पुल करने के लिए सूझा, ही पुल्ड एंड पुल्ड एंड पुल्ड, उसको पुल किया, एंड हिज विंग्स हम्ड एंड हम्ड, उसका जो विंग्स है
विंग्स मतलब उसका जो जो फिदर्स है। ओके, सो वो क्या किया, वो उसको भी फड़फड़ाया, मैंने मतलब वो उसको पुल किया, मुंह में पुल किया होगा, और विंग्स ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे जोर से फड़फड़ाया होगा। सो हेक्टर पुल्ड एंड हिज विंग्स हम्ड एंड हम। हेक्टर पुल करते गया एंड विंग्स ऊपर नीचे होते गया, बट द प्रिंसेस वाज टू हेवी। बट द प्रिंसेस, छोटी बच्ची थोड़ा हेवी थी, हैं, थोड़ा वजनदार थी। ही कुड फील हर स्लीपिंग, he could feel her sleeping as her grip on the branch failed. उसका जो नन्ही सी हाथ है, छोटी सी हाथ है, जब ग्रिप थोड़ा वीक हो गया है, तो हेक्टर फील किया कि ये अभी गिर जाएगी, क्योंकि हेक्टर भी एक चिड़िया है ना, तो उसका भी स्ट्रेंथ उतना नहीं है। तो दी बेबी वाज हेवी एंड Hector was also a bird, mere bird, so he could feel that the baby's hand was weak to grip on the branch. So it is failing. So he could feel her sleeping as her grip on the branch failed. So उसका जो grip था प्रिंसेस का, जब ग्रिप फेल हुआ तो फील किया कि ये स्लीप हो गया। Then a voice sounded in the ear. Then a voice sounded in his ear. क्या? He who is not strong enough must be smart enough. ये चीज वो सुना, ये चीज सुना, कौन सुना? हेक्टर सुना। क्या सुना? He who is not strong enough must be smart enough. जो कोई अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग ताकतवर नहीं है, वो थोड़ा स्मार्ट होना चाहिए, मतलब अक्लमंद होना चाहिए। ओके, he should be smart enough. Okay, Hector glanced around but could not see Oliver. Hector glanced around but could not see Oliver. Hector चारों ओर देखा, बट ओलिवर को देखा नहीं, बिकॉज ये चीज कौन बोला? ये ओलिवर ने बोला। He who is not strong enough must be smart enough. अब तक ओलिवर कूद किया था और ये सब देख रहा था। He was very cunning or very wise. So he said, he who is not very strong or strong enough should be smart enough. Then Hector glanced around but could not see Oliver. He did, however, see a strong vine hanging against the tree trunk. वो जो ओक ट्री, पुराना ओक ट्री का ट्रंक मतलब उसका जो बॉडी, वो बॉडी का पास एक स्ट्रॉन्ग वाइन मीन्स इट इज ए क्रीपर ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का लता। तो ही कुड सी द वाइन wrapped on the trunk of the oak tree which is very old. So he did, however, see, ये तो ओलिवर को तो देख नहीं पाया, बट ये देखा क्या? ये स्ट्रॉन्ग वाइन हैंगिंग अगेंस्ट द ट्री स्ट्रॉन्ग का साथ ही साथ एक स्ट्रॉन्ग वाइन हैंग होते हुए देखा। राइट? इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मीन्स तुरंत, एट वंस, सडनली, what he did, what Hector did, Hector grabbed the end of the vine का एंड को ग्रैब किया, as the princess fell. प्रिंसेस जब फॉल किए हैं, तुरंत उस दौरान वो भाइन को लेके उसका साथ रख दिया। So in the blink of an eye, Hector grabbed the end of the vine, and as the princess fell, he flew into it, around and around. The princess finally knotting the vine under itself. वो जो भाइन था ग्रेप्स का, वो भाइन को ये जो हेक्टर क्या किया, उसको एक एंड को पकड़ करके उसको, जब प्रिंसेस गिर रही उसके बाद वो प्रिंसेस का चारों ओर उसको नॉट किए, घुमा के। राइट? नेक्स्ट, a hummingbird could have flown into a hummingbird could have flown so fast everybody gasped as the princess kept falling. जब प्रिंसेस गिर रही थी और हमिंगबर्ड इतना जल्दी इतना तेज से वो चारों तरफ उसको नटिंग करता था, घुमा के उसको बांधता था, ये चीज कोई
बिलीव नहीं कर सका, तो वो देखा बोल के बिलीव किया। इट इज हार्ड टू बिलीव, इट इज इनक्रेडिबल, राइट। सो ये हमिंग बर्ड कुड हैव फ्लोन सो फास्ट, इतना फास्ट में ये हमिंग बर्ड फ्लो कर सकता है। एवरीबॉडी गास्प्ड, एवरीबॉडी क्या किया, गास्प्ड मतलब they were taken aback, they could not believe their eyes, okay. And the princess kept falling, and then she was suddenly pulled up short. वो उसका बाद वो उसको पुल अप किए, थोड़ा सा पुल अप किए। कौन? हेक्टर हमिंगबर्ड। The princess kept falling and then she was suddenly pulled up short. The vine head, उसका तो भाइन रह गया, चुप मैंने पूरा रह गया। जब टाल लिया वो गिर रहे, जब टाल लिया वो भाइन रह गया, और then the princess dangled safely in the air, वो झूल के रहा, सेफली झूल के रहा। अच्छा, 3 of king's men scrambled up the tree and soon had her safely on the ground. उसका बाद क्या किए, 3 ठो जो राजा का फुटमैन, किंग्स सर्वेंट्स, वे went to the tree and they climbed up the tree, climbed up the trees and soon had her safely on the ground again. वो तो अभी नजदीक डिस्टेंस में था, हाँ, तो ये चढ़ के उसको पकड़ के धीरे धीरे ग्राउंड का वो ले आए। She was unhurt. Princess was totally unhurt. उसको कोई ये नहीं था, माने कोई, she was not hurted at all. The forest was filled with the cry, hooray for the hummingbird. पूरा चिल्लाए सब कोई, ऐसा कोई बोले हिप्पी फुर्रे, ऐसे बोल के बोले हुर्रे द फॉर द हमिंगबर्ड, हमिंगबर्ड के लिए हिप्पी फुर्रे बोले, शाबाशी दिए, ताली बजाए, खुशी हुए। क्राई, ये क्राई मतलब खुशी का क्राई। द फॉरेस्ट वाज फिल्ड विद द क्राई, व्हाई, फॉर व्हाट, फॉर गिविंग हिप्पी फुर्रे फॉर द हमिंगबर्ड, हमिंगबर्ड के लिए हुर्रे करने के लिए। हेक्टर मूव्ड इनटू द कैसल एट द किंग्स insistence. King insisted Hector to come to the palace. राजा ऑर्डर दिए, राजा जिद किए कि नहीं, ये इतना क्लेवर बर्ड, इसको ले चलते हैं पैलेस के ओर। हेक्टर मूव्ड इनटू द कैसल, कैसल मीन्स दुर्ग, जहाँ पे राजा का राजवाड़ी है या राजवाटी है, राजा का पैलेस है, वहाँ तक हेक्टर को लिया गया किंग का जिद्दी के चलते। द रॉयल गार्डन planted, the royal gardeners planted special flower garden full of his favorite blooms. The royal gardeners, राजा का जो गार्डनर्स है, माली है, planted special flower gardens, उस स्पेशल फ्लावर गार्डन को तैयार किए, अच्छा अच्छा फूल पौधा लेके वो गार्डन को, फूल का गार्डन को तैयार किए। फूल ऑफ हिज फेवरेट ब्लूम्स, उनका जो फेवरेट फूल का फेवरेट फूल का जो प्लांट्स है, प्लांट्स को ले करके उसको रॉयल गार्डनर्स क्या किए, प्लांट किए कि अच्छा अच्छा फूल जैसे होगा वो इसको, उसके लिए वो रॉयल गार्डनर क्या किए, अच्छा फूल का पौधा प्लांट किए, ताकि अच्छा फूल ब्लूम होगा और सब और अच्छा सेंट आएगा और उसको अच्छा नेक्टर भी मिलेगा कि वो सीख करेगा। कौन? हमिंगबर्ड। तो हमिंगबर्ड के लिए स्पेशल गार्डन तैयार किया गया राजा का गार्डनर का द्वारा। ही वॉज ग्रेट फ्रेंड्स विद द प्रिंसेस, प्रिंसेस का अच्छा दोस्त हो गया। कौन? हेक्टर हमिंगबर्ड। एंड दे ऑफन प्लेड टुगेदर इन द फॉरेस्ट although she was not allowed to climb any more trees. और नो मोर कोई ट्री का और चढ़ने के लिए अनुमति नहीं दिया गया प्रिंसेस को, लेकिन वो हेक्टर का साथ, हेक्टर हमिंगबर्ड का साथ खेलने का अनुमति दिया गया। हेक्टर हमिंगबर्ड प्रिंसेस के साथ खेला, जंगल भी गया, मस्ती किया, लेकिन और पेड़ का और चढ़ने के लिए अलाउ नहीं किया गया। He was not allowed further. She was not allowed. Yes. So he was great friends with the princess. प्रिंसेस का बहुत बड़ा फ्रेंड हुआ। एंड दे ऑफन प्लेड टुगेदर इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में इकट्ठा खेले
although she was not allowed to climb any more trees. कोई ट्री को क्लाइंब करने के लिए अलाउ किया नहीं किया गया. The king gave a huge feast, बहुत बड़ा feast king दिए, and all the guests stood and toasted. Toasted means as a group wished somebody happiness or success. Success का जो happiness का बधाई, ये जो काम किया इसके लिए बधाई दिए सब कोई, उसको टोस्टेड बोलते हैं, टोस्टेड. सो द किंग गेव ए ह्यूज फीस्ट, बड़ा एक तो पार्टी दिए किंग, एंड ऑल द गेस्ट स्टूड, सब कोई गेस्ट खड़ा हुआ और ग्रीट किया हेक्टर हमिंगबर्ड को. हेक्टर हु हार्म्ड विथ हैप्पीनेस, जो हेक्टर जो कि खुशी में हमिंग हम किया, हम मतलब एक गाना गाने का, गुनगुनाना, उसे जो कि खुशी में गुनगुनाना था. द किंग डिक्लेयर, द किंग क्या डिक्लेयर किए, फ्रॉम नाउ ऑन यू शैल बी नोन एज हेक्टर हमिंगबर्ड द हीरो. अब से उसका नाम खाली हेक्टर था, लेकिन हेक्टर हमिंगबर्ड किंग ऑर्डर घोषणा करने के बाद उसका नाम हेक्टर हमिंगबर्ड हुआ. तो क्यों हुआ, बिकॉज ही वॉज हमिंग, ही वॉज ए बर्ड, ही वॉज हमिंग, गाना गुनगुना रहा था और वो ब्रेव भी था, हीरो भी था, इसलिए उसको बोला कि फ्रॉम नाउ, वो मैंने फीस्ट में, फीस्ट का दौरान राजा फीस्ट दिया और सब कोई गेस्ट खड़ा होके ताली बजा के उसको ग्रीट किए और राजा डिक्लेयर किए, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से तुमको बोला जाएगा हेक्टर हमिंगबर्ड द हीरो. You are the hero, you are a brave bird, you are a hummingbird, you are Hector Hummingbird, the hero. Okay? So बच्चे, this is Grimm King is the author of this chapter, and these are the difficult words like flitted, moved lightly and quickly from one place to another, grumpily in an angry manner, buzz up, go away at once, footmen means servants, array an arrangement of things, tidbits small tasty bits of food, chuckled, laughed softly, darting, running or moving very quickly, dangled, hung or swung freely, gasped, took a deep breath in the surprise, in surprise, vine a climbing plant को भाइन बोलते हैं, अंगूर का लता को भी भाइन बोलते हैं. In the blink of an eye, very quickly, in a very short time, insistence demanded for something and refusal to accept no other answer, insisted, toasted as a group wished somebody happiness or success. So this is written by Grimm King, and value package with part of the story tell us that if you are not physically strong enough to solve a problem, you can solve it by using your intelligence. ये चीज ओलिवर ओल ने किसको बोला था, हेक्टर हमिंगबर्ड को बोला था. So students, this is the end of this chapter. So please go through this chapter and revise the question answer which I was giving in the homework, and be prepared for this lesson for the upcoming exam in SA2 exam. Okay, so in the next class I will teach you the next subject. Okay, thank you.